23 जुलाई यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन को कैंसिल करने से मना कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स में पेपर लीक्स के इंस्टांसेस एक्नॉलेज किए गए हैं। बेंच के नोट किए गए कंक्लूजन्स ने न केवल स्टूडेंट्स बल्कि कई प्रोफेशनल्स को भी काफी निराश किया है। आप तो जानते हैं कि इस केस से सबकी उम्मीदें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर थी, पर जैसे ही उन्होंने नो रीनीट का ऑर्डर दिया, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में ये माहौल बना हुआ था, वहीं हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन लीडर्स ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को घेर कर रखा था और उनसे ऐसे पेपर लीक और माल प्रैक्टिस का जवाब मांग रहे थे। अब यूनियन और ऑपोजिशन की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल ने भी अपनी आवाज उठा दी है। एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सिब्बल ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में सबूत मांगे कि पेपर किस हद तक लीक हुआ था। उन्होंने कहा, "They have come to the conclusion that it is localized. Why in every examination during this government there are leaks? Who benefits from these leaks? These are all happening in BJP ruled states." आइए उनकी जुबानी सुन लेते हैं कि उनका इस वर्डिक्ट पर क्या कहना है। See, the Supreme Court must have, in fact, they had asked the IIT Delhi to look into this matter as to how to deal with these issues. In the meantime, they asked for evidence that's available as to how much of a spread is the paper leak, and they probably have come to the conclusion that it is localized. And therefore, why punish the thousands and lakhs of students who have actually sat for NEET, who are not involved in the localized manipulation of the results of particular papers. So I think that we must give credit to the Supreme Court for having looked at all this expeditiously and having come to a conclusion that yes, there have been leaks, but they are localized. But the question is not as to what the Supreme Court has done. The question is, why is it that in every examination during the course of this government there are leaks, not justly in the NEET exam, but in every exam in every state? The question is, who is involved? For whose benefit is this government? And this is all happening in BJP ruled states mostly. For whose benefit are these leaks happening? And who are the people who have without merit gotten jobs? And you've seen even an IAS officer recently, right, based on a false caste certificate, is got into the IAS. So these are happenings during the course of these last 10 years, which used to never happen before. And the National Testing Agency is something that needs to be completely revamped. तो आपने देखा कि कैसे राज्यसभा एमपी गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए सवाल किए जा रहे हैं कि बिना योग्यता वाले कौन लोग हैं जिन्हें नौकरियां मिली, और उन्होंने यहाँ सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि दूसरे एग्जाम्स की भी बात उठाई है। तो जहां एक और सीनियर एडवोकेट का मानना है कि ये सब पिछले 10 सालों में हुआ है और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, एनटीए को पूरी तरह से नया रूप देने की जरूरत है। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने वक्त को भी याद किया जब वो एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पूरे सिस्टम का ओवरहॉल करने के लिए रिकमेंड किया था। उन्होंने फिर स्ट्रेस किया कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है और करंट सिस्टम नेशन वाइड एग्जामिनेशन ऑफ दिस स्केल एडमिनिस्टर करने के लिए इनएडिक्वेट है। You cannot possibly hold an all India exam of this magnitude under the present NTA system. कपिल सिब्बल ने इस पूरी सिचुएशन और इसके रिकरिंग नेचर को रोके जाने के लिए कहा है कि कोई लॉ हेल्प नहीं करेगा, आपको एक मेलेडी से डील करना है, आपको समझना है कि why this is happening। इस पे और थोड़ा स्ट्रेस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है, Do we need another structure in setting up an examination? How do we deal with these examinations? All these things have to be looked at. And why should NEET be an all India examination? That's another thing that Tamil Nadu has objected to NEET as an examination. There are some issues there also, because the NEET examination is based on the CBSE system. And many of the students in local boards cannot possibly compete with students who are familiar with the CBSE system. So there is an inherent inequality there as well. After all, governments are for sabka saath, for everybody, right? If governments are for everybody, they have to deal with every section of our youth who is sitting for this exam and dealing with their concerns. So the issue is not what the Supreme Court has done. We welcome whatever the Supreme Court has done. The issue is, why is this government deeply involved in these kind of scams year after year, month after month? आप तो जानते हैं कि कोर्ट ने नोट किया है that there is no evidence on record to suggest that the exam results are compromised
और दैट देयर हैज बीन एनी सिस्टमैटिक ब्रीच। उन्होंने ये भी नोट किया है कि डाटा सिस्टमैटिक लीक ऑफ द नीट यूजी क्वेश्चन पेपर को सजेस्ट नहीं करता एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए। हाउएवर, कोर्ट ने हजारीबाग और पटना में स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ लीक्स एक्नॉलेज किए हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कपिल सिब्बल ने भी कहा दैट द नीट यूजी पेपर लीक अकर्ड इन हजारीबाग एंड पटना and this fact is not in dispute। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट ने इंडिकेट किया है कि सेंट्रल एजेंसी द्वारा ऑनगोइंग प्रॉब ने रिवील किया कि 155 स्टूडेंट्स ने इन एग्जाम सेंटर से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बेनिफिट हुए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को कंसीडर करने के लिए अर्ज किया, ये कहकर दैट द गवर्नमेंट सर्व्स एवरीवन एंड शुड कंसीडर ऑल सेक्शंस ऑफ आवर यूथ हु आर टेकिंग दिस एग्जाम। ऐसे ही संजय राउत को भी सुप्रीम कोर्ट के नीट वर्डिक्ट पर यूनियन और सुप्रीम कोर्ट दोनों को घेरे में लेते हुए देखा गया है। उन्होंने कहा है, नीट के वर्डिक्ट पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं राहुल गांधी इनको माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगनी चाहिए? अरे भाई, ये क्या सत्यमेव जयते बोलेंगे? सत्य से उनसे क्या नाता है? न्यायालय के दीवार पर जो सत्यमेव जयते की जो एक तस्वीर लगी होती है ना, उतार दो। जिस प्रकार के निर्णय आजकल आ रहे हैं वो निर्णय सत्यमेव जयते से मेल नहीं खाते। चलो, ये तो बात हुई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और ऑपोजिशन की, लेकिन आपको याद होगा कि जब नीट का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान इसी ऑपोजिशन को यूनियन गवर्नमेंट को और एजुकेशन मिनिस्टर पर बरसते हुए देखा गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट नीट पर अपना फैसला सुना चुका है तो एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ऑपोजिशन पर पलटवार किया है और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही यूनियन ने रिकमेंड किया है कि वो एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे फॉर अ कंप्लीट रीवैप ऑफ एनटीए। अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने लिखा है, सत्यमेव जयते, टुडे वर्डिक्ट ऑफ नीट यूजी विल पुट स्पेकुलेशंस टू रेस्ट and provide relief to lakhs of hard-working and honest students. Grateful to Honorable Supreme Court for the landmark verdict that upholds the interest of students. The judgment will open the eyes of those who rubbish the Indian examination system and grab this opportunity for vested interests, scoring political brownies and stoking civil unrest and anarchy. Shri Rahul Gandhi should apologize for playing with the sentiments of lakhs of the student and their parents as well as for trying to gain political mileage out of it। सिर्फ वही नहीं, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने भी वर्डिक्ट के बाद ऑपोजिशन को उनके एक्ट के लिए क्रिटिसाइज किया और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था और एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की ईमानदारी, एग्जामिनेशन का जो पूरी पवित्रता होती है वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के 4 दिन तक सुनवाई के बाद कहा। तो ये तो जायज है कि दोनों ही पार्टीज नीट इशू को लेकर एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं, पर क्या इससे स्टूडेंट के भले के लिए कुछ निकल कर आएगा? ये सवाल अब भी क्वेश्चनेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।